Hello student, today we are going to continue chapter 6 lines and angles. Clear? In this exercise we will start exercise 6.2. Exercise 6.2. In this exercise, first of all I would like to tell you the transversal and parallel lines. So what is transversal? Transversal. If a line intersects two lines, two or more lines at distinct points, then the line is called transversal. Suppose करो there is two line M and N and this is a line L intersect M and N at two distinct points with different points P and Q, then the line L is called transversal. In figure, line L intersects two lines M and N at two distinct points P and Q. So line L is called transversal. Clear? Now parallel lines. When two lines lie in a same plane, एक सेम प्लेन में लाई कर रही है and do not intersect each other if produced either side called parallel lines. देखो टू लाइन्स है, एक ही प्लेन में लाई कर रही है, क्लियर, और इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चाहे इनको दोनों तरफ प्रोड्यूस करें तो दे नेवर इंटरसेक्ट. ठीक है, तो सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. क्लियर? नाउ pair of angles. When a transversal intersect two lines, then angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8 are formed. क्लियर? ये टू लाइन्स है और इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4
एंगल 5, 6, 7, 8 फॉर्म्ड होंगे। क्लियर? ये नंबर 1 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कौन कौन से पेयर होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7 और 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नंबर 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से पेयर होंगे? एंगल 2 और 8 एंड 3 एंड 5, एंगल 2 एंड 8 एंड एंगल 3 एंड 5। क्लियर? नंबर 3 पे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 4 एंड 6, 1 एंड 7, 1 एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। These are the pair of alternate exterior angle. नंबर 5 पे इंटीरियर एंगल, angles on the same side of transversal, or we can say co-interior angle. Co-interior angle, देखो interior angle on the same side of transversal, this is transversal L and same side में interior में 2 और 5 and 3 and 8, तो ये हो जाएंगे 2 और 5 and angle 3 and 8। क्लियर? तो यहाँ corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angle and interior angles on the same side of transversal. These are the called co-interior angles. Clear? Now there is a axiom. This is the first axiom of this exercise, and or we can say the third axiom of this chapter. Axiom number 1 of this exercise: when a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. जो भी corresponding angles बनेंगे उनके पेयर इक्वल होंगे। तो M and N पैरेलल है, L is a transversal, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फॉर्म्ड हुए, L ट्रांसवर्जल है। तो इन फिगर M पैरेलल N and L is a transversal, L ट्रांसवर्जल है। क्लियर? तो एंगल कौन कौन से फॉर्म्ड होंगे? सॉरी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर होंगे, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंड एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। दिस इज द एक्सियम। क्लियर? नाउ दिस एक्सियम इज कॉल्ड corresponding angles
axiom. Clear? Now the second axiom. Axiom number 2, when a transversal intersect two lines such that each pair of corresponding angles is equal, then the lines are parallel to each other. तो corresponding angles अगर पेयर इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल है तो corresponding angles इक्वल होंगे. तो इन फिगर, इस फिगर में एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, एंड एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है. तो दिस इंप्लाइज टू m पैरेलल n होगा. दिस एक्सियम is called converge of corresponding angles axiom. This is the converge of corresponding angles axiom. Clear? Lines parallel है तो corresponding angles equal होंगे. This is axiom 1. और corresponding angles equal है तो lines parallel होगी. This is axiom number 2. Now see some theorems based on these axioms. Theorem number 1. When a transversal intersect two lines, then each pair of alternate interior angle is equal. जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल. ठीक है? इन फिगर गिवन में क्या है मेरे पास? इन फिगर m पैरेलल n and L is a transversal. क्लियर? प्रूफ में करना है. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? कि एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल है एंड एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल. ठीक है? प्रूफ में देखिए, सिंस m parallel n and L is a transversal. m और n क्या है? पैरेलल है, और L क्या है? ट्रांसवर्सल है. तो दिस इंप्लाइज टू क्या होगा? एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा. दिस इज इक्वेशन 1 बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, बट एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. तो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट करेंगे
तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली एंगल 1 सॉरी एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा एज प्रूव। क्लियर? Now next theorem, if a transversal intersect two lines such that each pair of alternate interior angle is equal, then lines are parallel to each other। अब ये कन्वर्ज है कि अगर एक ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को तो ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर? दिस इज थ्योरम नंबर 2। तो गिवन में इन फिगर, इस फिगर में L इज ए ट्रांसवर्जल such that angle 1 equals to angle 2 equals to angle 8 and angle 3 equals to angle 5। alternate interior angle equal given है। to prove, क्या प्रूव करना है, एंगल M पैरेलल टू N, ये लाइन पैरेलल है। तो प्रूफ में देखिए आपको, since angle 2 equals to angle 8, 2 और 8 गिवन है, ये गिवन है हमें, बट एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो इक्वेट करें इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेट करेंगे तो एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, 4 और 8 इक्वल हो गए। बट दिस इज अ पेयर ऑफ corresponding angles, so therefore by converge of corresponding angles axiom, कन्वर्ज में क्या होगा, लाइन पैरेलल होगी। क्लियर? जब लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। क्लियर? नाउ नंबर 3, थ्योरम नंबर 3, if a transversal intersect two parallel lines, then the co-interior angle, then the interior angles on the same side of transversal is supplementary। यानी कि अगर एक ट्रांसवर्जल
टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल दैट इज एंगल 2 और एंगल 5 सप्लीमेंट्री होंगे, यानी ये 2 और 5 का सम 180 होगा। ऐसे एंगल 3 और 8 का सम 180 होगा। तो गिवन में इन फिगर M parallel to N and L is a transversal. Clear? To prove, we have to prove angle 2 plus angle 5 equals to 180 और angle 3 plus angle 8 equals to 180. ठीक है, प्रूफ में देखिए since angle 1 plus angle 2 equals to 180, एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं? ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर, ये लाइन है L और ये एक रे स्टैंड कर रही है, तो 1 और 2 का सम कितना होगा? 180 होगा। बट एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहां पर एंगल 1 के को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एंगल 5 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। और सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180। Hence proof. Clear? Now last theorem of this exercise. If a line if a transversal intersect two lines such that the interior angles on the same side of transversal is supplementary, then lines are parallel to each other. तो गिवन में है इन फिगर एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 and angle 3 plus angle 8 equals to 180. एक गिवन है कि जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री है, सम 180 है। तो वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि एंगल M पैरेलल N लाइंस पैरेलल होगी। प्रूफ में देखिए since angle 1 plus angle 2 equals to 180, this is the linear pair, and angle 2 plus angle 5 equals to 180, ये गिवन है। एंगल 1 और 2 तो लीनियर पेयर हो गए, सम 180 होगा। 2 और 5 का सम 180 गिवन है, ठीक है। तो इक्वेट करें इक्वेशन 1 को और 2 को, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट करेंगे हम इक्वेशन 1 और 2 को। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। 2 और 2 कैंसिल हो गया, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 5 के, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल आ गए, तो बट दिस इज अ पेयर ऑफ corresponding angle,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है, तो देयरफॉर लाइंस पैरेलल होगी, लाइंस पैरेलल होगी m बाई कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियम by converge of corresponding angles axiom. क्लियर? तो लाइंस m पैरेलल n होगा, ठीक है। यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल आ गए, तो पेयर इक्वल आ गए तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in the figure find the values of x and y। वैल्यू फाइंड करनी है x and y की। then show that AB parallel to CD, और AB और CD पैरेलल हमें शो करना है। क्लियर? सॉल्यूशन में देखिए आप 50 प्लस x, 50 और x दोनों का सम 180 होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से ये देखो ये रे लाइन पे स्टैंड कर रही है, तो 50 और x का सम 180 होगा। सो x की वैल्यू होगी 180 माइनस 50, सो x इक्वल्स टू 130। x की वैल्यू क्या आ गई, 130 आ गई। एंड y इक्वल्स टू, y और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो y की वैल्यू 130 के इक्वल होगी because of vertically opposite angles, as we know that vertically opposite angles are always equal to each other, तो y की वैल्यू 130 होगी। अब x 130 है और y भी 130 है, since x equals to y equals to 130 degree, but this is a pair of alternate interior angles, as we know that when a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then lines are parallel to each other, therefore AB parallel to CD। alternate interior angle अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और लाइंस पैरेलल है तो alternate interior angles इक्वल होंगे। क्लियर? Now question number 2, in the given figure, if AB parallel to CD and CD parallel to EF and the ratio Y ratio Z is 3:7, find x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, y और z का जो रेशियो गिवन है हमें 3:7 गिवन है। क्लियर? अब देखिए सिंस सॉल्यूशन में देखिए, तो ये y है तो ये भी y होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। ये y है तो ये भी y होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब हमने क्या किया, लेट y बी 3p एंड z बी 7p, क्योंकि रेशियो हमें 3:7 दिया हुआ है, तो हमने 3p और 7p लेट कर लिया इनको, ठीक है। अब सिंस y प्लस z का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स। CD पैरेलल किसके है, CD पैरेलल EF के है, CD पैरेलल EF के है, तो ये क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180। तो y 3p है, z 7p है, इक्वल्स टू 180। तो 3p और 7p कितने हो गए, 10p इक्वल्स टू 180। तो p की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन 10, 18 डिग्री। क्लियर? p हमारे पास p 18 डिग्री, तो y इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास 3p। 3p मतलब 3 इंटू 18,
54 डिग्री, y की वैल्यू 54 हो गई। अगेन x प्लस वाई इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल है, क्योंकि इंटीरियर एंगल ए बी एज ए बी पैरेलल टू सी डी, तो x we have to find, y is 54 equals to 180, तो x equals to 180 minus 54, तो x equals to 126 डिग्री। यहाँ y और z क्या थे, को इंटीरियर एंगल थे, सम 180 हुआ, y को लेट किया था 3p, z को लेट किया 7p, 3p 7p 180, सॉरी 3p प्लस 7p 180, तो 10p इक्वल्स टू 180, p की वैल्यू 18 आ गई, तो y 3p है तो 3 इंटू 18 54 आ गया। अब यहाँ x और y अगेन को इंटीरियर एंगल हो गए, सम 180 होगा क्योंकि AB और CD पैरेलल है, तो x हमें फाइंड करना है, y 54 है तो x इक्वल्स टू होगा 180 माइनस 54, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर AB पैरेलल CD, EF परपेंडिकुलर AB और CD पैरेलल है, EF परपेंडिकुलर CD एंड एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्री। ओके, दिस एंगल GED 126 डिग्री, क्लियर। फाइंड एंगल AGE, एक तो ये एंगल फाइंड करना है, क्रॉस साइन लगा रहा हूं, एंगल AGE, GEF, ये GEF हो गया, ये एंगल, और FGE दिस एंगल, क्लियर। तो सॉल्यूशन में देखिए, सिंस AB पैरेलल टू CD एंड GE इज ए ट्रांसवर्जल, GE क्या ट्रांसवर्जल है, तो देयरफॉर एंगल AGE और एंगल GED दोनों इक्वल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए। अब सिंस एंगल GED 126 डिग्री है, तो AGE अब हमारे पास कितना हो जाएगा 126 डिग्री। देखिए ये एंगल पूरा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएंगे, क्लियर। अब सिंस एंगल AGE प्लस एंगल FGE, देखो ये AGE हो गया और ये FGE, ये AGE ये FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्लियर। अब AGE हमारे पास कितना है 126, तो FGE कितना हो जाएगा 180 माइनस 126, तो FGE हमारे पास हो जाएगा 54 डिग्री, क्लियर। नाउ नंबर 3 पे देखो, एंगल GED जो है हमारे पास वो 126 डिग्री है, ये एंगल पूरा GED। अब GED में एक तो ये एंगल है GEF, क्लियर, ये एंगल, और दूसरा ये है एंगल FED, एंगल FED इक्वल टू 126 डिग्री। सिंस अब देखिए GEF हमें फाइंड करना है, FED ये एंगल 90 है इक्वल टू 126 डिग्री। सिंस एंगल FED 90 क्यों है, क्योंकि EF जो है परपेंडिकुलर है CD पर, ये EF लाइन CD में परपेंडिकुलर है, तो एंगल GEF हो जाएगा 126 माइनस 90, तो एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री, क्लियर। Now question number 4. In the figure, if PQ parallel SP, angle PQR 110 and angle RSP 130 डिग्री, ये 110 है,
ये RST 130 डिग्री है। फाइंड QRS, ये एंगल हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो कैसे फाइंड करेंगे हम इसको? तो सॉल्यूशन में देखिए, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, ड्रॉ ए लाइन XY एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए लाइन XY पैरेलल टू PQ और ST। PQ ST के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे थ्रू द पॉइंट R से होकर एक हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है XY। किसके? PQ या ST के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर? अब नाउ सिंस एंगल PQR, ये एंगल PQR और ये एंगल QRX, इसका सम 180 होगा बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। क्लियर? तो PQR 110 है, QRX हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180। तो QRX हो जाएगा 180 माइनस 110, 70 डिग्री। तो दिस इज 70 आ गई। क्लियर? नाउ एंगल RST और एंगल SRY, इसका सम भी 180 होगा, को इंटीरियर एंगल। ये एंगल RST हो गया, ये एंगल SRY होगा। तो SRY RST हमारे पास है 130, SRY हमें फाइंड करना है। तो SRY हो जाएगा 180 माइनस 130, एंगल SRY हो जाएगा 50 डिग्री। ये 50 हो गया। ठीक है? अब देखिए, ये पॉइंट R पर तीनों एंगल बन रहे हैं। कौन से? QRX, QRS और एंगल SRY। ठीक है? तो इनका सम कितना होगा? 180 होगा। सिंस QRX प्लस QRS प्लस SRY इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एक लाइन के एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सबका सम 180 होता है। QRX हमारे पास 70, QRS फाइंड करना है, SRY 50 इक्वल टू 180। 70 और 50 कितना हो गया? 120। तो QRX हो जाएगा 180 माइनस 120। तो QRS हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर AB पैरेलल CD के, ये AB और CD लाइन पैरेलल है। APQ 50 डिग्री का है, PRD 127 डिग्री का है। तो उस कंडीशन में X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में आप देखिए, सिंस AB पैरेलल टू CD, तो एंड PQ इज ए ट्रांसवर्जल, AB और CD पैरेलल है, PQ ट्रांसवर्जल है। तो एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQR ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। APQ 50 है, एंगल PQR X है। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। क्लियर? सिंस AB पैरेलल टू CD एंड PR इज ए ट्रांसवर्जल, अगर PR को हम ट्रांसवर्जल लेते हैं, तो PR को जब ट्रांसवर्जल लेंगे तो एंगल APR और इक्वल होगा एंगल PRD के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ये पूरा एंगल एपीआर, ये एंगल एपीआर हो गया, पीआरडी के होगा। अब एपीआर किसके इक्वल है, 50 प्लस वाई के, पीआरडी 127, ये एंगल 50 है प्लस वाई है, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 127 माइनस 50, तो वाई इक्वल्स हो जाएगा 77 डिग्री। क्लियर? Now the last question of this exercise, question number 6. In the figure PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. ये PQ और RS two mirrors हैं जो एक दूसरे के parallel placed हैं. An incident ray AB strike the mirror PQ at B. देखो ये AB incident ray है जो PQ को strike करती है B पॉइंट पर, रिफ्लेक्ट के बाद वो BC डायरेक्शन में चली जाती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, BC डायरेक्शन में चली जाती है एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट पॉइंट C पर स्ट्राइक करती है एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और CD डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। वी हैव टू प्रूव द इंसिडेंट रे AB एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे CD आर पैरेलल। ओके, तो सॉल्यूशन में देखिए, तो हम यहाँ पर draw BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS। ये perpendicular डालेंगे, this is BM and this is CN। क्लियर? तो देखिए, सिंस एंगल ये सपोज करो एंगल 1 है, ये एंगल 2, दिस इज एंगल 3 और दिस इज एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू law of reflection, incident angles, angle of incident is equal to angle of reflection, इंसिडेंट एंगल हो गया, ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्लियर? अब सिंस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देखो Q इक्वल है क्योंकि सिंस AB पैरेलल CD, AB और CD पैरेलल है एंड BM परपेंडिकुलर टू AB एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। भाई AB और PQ और RS, PQ BM perpendicular to PQ, ये BM perpendicular PQ एंड CN perpendicular RS के एंड PQ पैरेलल RS के। देखो ये और ये पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये 90 होगा, ये एंगल 90 है और ये 90 है, तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये लाइंस BM पैरेलल किसकी हो जाएगी, CN की। तो BM और CN जब पैरेलल है तो एंगल ये और ये पैरेलल हो गई, तो एंगल 2 और एंगल 3 कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे।
सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। क्लियर? एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। अब से देखिए एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन किससे? थर्ड। 2 और 3 इक्वल है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। इसको एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख दें, इसको एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख दें। एंगल 2 को किससे रिप्लेस करते हैं? एक एंगल 2 को एंगल 1 से रिप्लेस कर देते हैं और एक एंगल 3 को एंगल 4 से रिप्लेस कर देते हैं। सिंस एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। क्लियर? तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर क्या हो जाएगा? एंगल पीबीसी हो जाएगा। पूरे एंगल पीबीसी। और 3 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा? एंगल, ये एंगल 3 और 4 मिलकर हो जाएगा एंगल बीसीएस। अब पीबीसी, ये एंगल पीबीसी है। अब पीबीसी और बीसीएस इक्वल है, बट दिस इज एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो एंगल होगा एबीसी। एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो एंगल एबीसी होगा, और एंगल 3 और 4 का सम होगा वो एंगल बीसीडी होगा। एंगल एबीसी और एंगल बीसीडी इक्वल है, बट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी। क्लियर?